this question, ke, why do we forget? I'm yet to find a satisfactory answer for this, and this question has been troubling me since many years, many years. matlab. I remember I spoke to you last 10 years ago, and I spoke to you last time also, and but the answers are not satisfying me. But I'm reading something these days. I'm reading a book called The Myth of Sisyphus. Mm. I'm not sure how do we pronounce that word. Sisyphus. Sisyphus, yeah. It is by Albert Camus, Yeah. Camus. Yeah. and Albert Camus. I'm Albert Camus. I'm almost halfway through it, and I found a very interesting analogy in it. He basically he is trying to explain everything from a point of view of absurd. Basically, he's saying that let's accept that the rationale of life is absurd. Okay, basically he's saying that it is the inherent human tendency to find a clarity in a situation, to find a meaning to life, to find a clarity in situation, to explain to himself what is this world about. And the harder he's trying to get to the point, the harder he's trying to get to the understanding, the world goes farther away, the understanding goes farther away. So basically he's saying that there's a gap between our desire to understand this world and the unreasonable silence of this world. Okay, and he calls this gap absurd. Okay, and when I think about this question again and again, that why don't we refer to the vast sea of experience we have in terms of people around us, in terms of our own life, in terms of our own people, our parents, our friends, our relatives, our texts, our historians, our intellectuals. um, I feel that the answer somewhere lies in a mix of the ego and hope. ego that ego because I feel that whatever has happened before, whatever has happened to my parents, whatever has happened to my grandparents, to my elders, to my ancestors, to the gods, to the demigods, my destiny would be different. Okay, and hope because I feel that I might find my way. I think I might find my way even if I go through the same path. And I feel that sometimes it happens that matlab all the questions matlab they get amalgamated in this only, basically ke, we use our knowledge base, we use the past knowledge base. Okay, but we seldom use the wisdom base. Yeah. As a doctor, sometimes I feel as a surgeon while operating that whatever I'm doing right now, it met with a bad accident last time. Okay, but still I want to go through the same path. Okay, I want to undergo the same journey again. Why? I have a knowledge base. I can refer to my textbooks, I can refer to my experience in the past. Okay, but sometimes I feel that I might have a different destiny. This particular moment which I'm going to repeat might have a different destiny. And I commit the same mistake again. Okay, then I meet with a similar situation again after some time I do the same thing again. Okay, so the thing is sometimes I feel that it is organic not to learn. Okay, even if it is organic, why am I not learning? Why am I not um, referring to the wisdom base? Why am I filled with so much of indifference to the whole situation? See, मोहित, तुमने असल में
बहुत सारी बातों को छेड़ा है, बहुत सारी बातों को। एक तरफ तुमने मिथ ऑफ सिसिफस, अल्बर्ट कामू की जो किताब है, बहुत खूबसूरत किताब है, मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी और काफी दिनों तक उसने मुझ पर असर किया था। और वहां से तुम एब्सर्ड के आइडिया से शुरू होते हो और बाद में तुम खत्म करते हो कि आई स्टिल हैव होप। बीच में तुम कहते हो कि कुछ भी ठीक से सर्टन सा नहीं लगता है जो भी मैंने हासिल किया है, वगैरह वगैरह। सी एक एक चीज को एक एक करके पकड़ते हैं और फिर वहां से शुरू करते हैं। और शुरू मिथ ऑफ सिसिफस से करते हैं। ये जो एब्सर्ड का आइडिया है कि सब कुछ अतार्किक है, बेतुका है, ये आइडिया कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है, ये आइडिया बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और इस आइडिया को काट पाना आसान नहीं है, पर इस आइडिया के साथ जूझना और इस आइडिया को एंगेज करना आज के समय में अपने आप में बहुत बहुत कमाल का काम होने जा रहा है। और वहीं से शुरू करते हैं। सी जब आप कुछ भी करते हैं तो आप उसको रैशनलाइज करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक ढूंढते हैं, उसके पीछे एक गोल ढूंढते हैं। और इंसान के पास तो अपने गोल को ढूंढना और उसको जस्टिफाई करना, ये तो एक पुश्तैनी काम है हम इंसानों का। और जब उस काम के सामने मिथ ऑफ सिसिफस आके खड़ा हो जाता है कि चाहे वही काम को आप 1 पुश्त करें, 10 पुश्त करें, 100 पुश्तें करें, कहीं ना कहीं आप एब्सर्ड से, बेतुके से मुक्त नहीं हो पाते। हम घूम फिर के वहीं खड़े होते हैं, वही हिंसा, वही अशांति, वही लड़ाई झगड़े, वही वही सब कुछ दोबारा बार बार आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब क्यों हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने जो क्रिएट कर दिया है और उसको हम ठीक से एंगेज नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम ऐसा क्यों ना करें कि अलग अलग स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं उनको एक एक करके एंगेज करते हैं। चाहे वो फैमिली है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो मनी है, चाहे वो मैरिज है। और फिर खुद से पूछते हैं कि क्या हमने जो कुछ बनाया हुआ है, क्या अगर ये ऐसे ही रहा तो क्या हमारे पास इस एब्सर्डिटी के सामने एंगेज करने का कोई जेन्युइन रैशनल होगा कि नहीं? तो उसमें आज जो मेरे मन में था कि क्यों ना हम मनी से शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक। देखो, जब हम मिथ ऑफ सिसिफस को अपने सामने रखते हैं, और मिथ ऑफ सिसिफस बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आप कुछ भी करो वो अंत में बेतुका साबित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बेतुका इसलिए हो रहा है कि हमने जो टारगेट, जो गोल डिसाइड किया था, उस गोल को जस्टिफाई करने के लिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, वो स्ट्रक्चर ही मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस क्यों हो रहा है? उस मीनिंगलेस होने के प्रोसेस को अगर हम समझते हैं तो हम जहां से शुरू हुए थे उस सारे के सारे प्रोसेस की स्मृति को एकदम से एक पल में समझ लेंगे। प्रॉब्लम कहां होती है? जब हम अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर्स को ट्रांसेंड नहीं कर पाते। प्रॉब्लम वहां पर होती है। फैमिली भी तो एक स्ट्रक्चर है, मनी भी तो एक स्ट्रक्चर है, स्टेट भी तो एक स्ट्रक्चर है, और इवन जो नॉलेज सिस्टम्स हमने बनाए हैं वो भी तो एक स्ट्रक्चर है।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फ्रेम बनाना चाहता हूं, जिस फ्रेम के अंदर मैं अपने लिए कुछ चीजें निर्धारित कर लूं। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरे लिए वही पुरानी एक परिभाषा है जिसको मैं यूज करता हूं, कि इंसान के पास सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु का डर। ओके, और उस मृत्यु को जब हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो सियाने लोगों ने मृत्यु को काटने के लिए भी अलग अलग किस्म के फ्रेम्स बनाए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने मर्जी लॉजिक ढूंढ लो मृत्यु के सामने, तो घूम फिर के वो मृत्यु के 3 डिफरेंट फॉर्म्स बन जाते हैं। पहला, आपकी अपनी मृत्यु, ये एक फ्रेम है जिसके अंदर आप बहुत कुछ देखते हैं। दूसरा, इससे जो अगला फ्रेम है वो है आपने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जो दूसरों के साथ जोड़ते हैं आपको, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो मनी है, चाहे वो नेशन है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो सिविलाइजेशन है, चाहे वो रेस है, कुछ भी है, जो आपको एक दूसरे से जोड़ते हैं, जो आपको एक खास किस्म का ग्रुप, एक खास किस्म का कम्यून में जोड़ते हैं, एक आपकी कम्युनल आइडेंटिटी बनाते हैं। कम्यून से कम्युनल, अदरवाइज मैं सांप्रदायिक लेवल पर नहीं कह रहा हूं, कि कम्युनल फ्रेम है। आपको डर लगता है कि कहीं अगर नेशन खत्म हो गया तो आपका क्या होगा, आपकी रेस खत्म होगी तो आपका क्या होगा, मनी खत्म होगी तो क्या होगा। तो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं है, आप एक कम्युनल पर्सन भी हैं, कि आपके रिलीजन को खतरा है, आपकी नेशन को खतरा है, आपकी भाषा को खतरा है, आपके मॉनेटरी सिस्टम को खतरा है। तो हमने एक कम्युनल फ्रेम भी हमारे सामने है जिसके टूटने का हमें डर होता है, जो हम एज एन इंडिविजुअल फील करते हैं। क्लियर? जैसे हमारी फैमिली पर अगर कोई खतरा है तो सिर्फ हमारी फैमिली पर खतरा नहीं है, वो हमारे ऊपर भी खतरा है। उस समय हमारे लिए फैमिली और खुद को अलग करना संभव नहीं होता। तो फैमिली के टूटने का डर हमारा डर भी बन जाता है। तो ये दूसरा डर है, एक आपके अपनी देह के छूट जाने का डर, और दूसरा कम्युनल बीइंग जो है आपका, उसके छूट जाने का डर, डेथ ऑफ अ कम्युनल पर्सन इनसाइड यू। और तीसरा जो इससे भी बड़ा डर है वो है डेथ ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, होमोसेपियंस। आप कहते हैं कि मैं अपनी मौत से नहीं डरता, ठीक है, आप अपनी मौत से नहीं डरते, फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है, मैं अपने देश की मौत से नहीं डरता हूं, अपनी फैमिली की मौत से नहीं डरता हूं, मॉनेटरी सिस्टम की मौत से नहीं डरता हूं, ठीक है, ओके। तो फिर उससे बड़ा डर क्या है? उससे बड़ा डर है होमोसेपियंस, ह्यूमन स्पीसीज की मौत। ठीक है, तो 3 फ्रेम्स हो गए, आपकी मौत, आपके अंदर के कम्युनल बीइंग की मौत, और तीसरा ह्यूमन स्पीसीज की मौत। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान के पास ये 3 फ्रेम्स हर समय साइमल्टेनियसली जिंदा रहते हैं, और इन्हीं तीनों फ्रेम्स के बीच में इंसान चीजों के फैसले करता है। जैसे आपकी मौत कभी भी हो सकती है, वैसे ही आपके अंदर का जो कम्युनल फ्रेम है, चाहे वो नेशन है, चाहे वो मॉनेटरी सिस्टम है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कल्चर है, रेस है, कुछ भी है, उसकी भी कभी भी मृत्यु हो सकती है। हो सकता है ये फर्क जरूर हो कि अगर आपकी मृत्यु 80 साल के बाद होनी है तो किसी रेस की मृत्यु 800 साल बाद हो या 8000 साल बाद हो, पर मृत्यु उसकी भी है, क्योंकि ये सब हमने बनाया, जो हमने बनाए हैं, कहीं शुरू किए हैं, तो उनका कोई अंत भी है। ठीक उसी तरह से इससे बड़ा जो डर है होमोसेपियंस, ह्यूमैनिटी। कल को
जैसे आज कोरोना वायरस है, हो सकता है कल को कोई ऐसा पेंडेमिक आ जाए जो पूरी इंसानियत को खत्म कर दे। बिल्कुल। सो पॉइंट ये है कि अगर इंसानियत खत्म हो रही है, इंसानियत पूरी तरह से ही खत्म हो जाती है, तो हमारे किसी भी डायलॉग की कोई तुक नहीं है। जैसे आज कितनी स्पीसीज हैं इन जानवरों की या पेड़ पौधों की जो खत्म हो चुकी हैं, उनके बारे में हमें पता भी नहीं है। हो सकता है कल को कोई ह्यूमन स्पीसीज का सेकंड वर्जन पैदा हो जिनको हमारी मौत की कोई चिंता ही ना हो। ठीक। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत गहरे में सेल्फ ऑब्सेस्ड स्पीसीज हैं, बहुत गहरे में सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। और इस ऑब्सेशन की ये जो 3 फ्रेम्स हैं, मेरी मृत्यु, मेरे कम्युनल फ्रेम की मृत्यु और मेरे ह्यूमन स्पीसीज के फ्रेम की मृत्यु, अगर इन 3 फ्रेम्स के अंदर हम ध्यान से देखें तो हमने कभी भी इन 3 फ्रेम्स को ट्रांसेंड नहीं किया है। और इन 3 फ्रेम्स के अंदर हम हर बार कोई धर्म पैदा कर लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर लेते हैं, बट सवाल ये है कि ये सारी चीजें क्या हमको इन तीनों फ्रेम्स से आगे लेके जा सकती हैं? नो। रादर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये मानने की जरूरत है कि ये 3 फ्रेम्स हमारी सीमा भी है, हमारी लिमिटेशन भी है और हमारा कॉन्टेक्स्ट भी। हम कुछ भी बनाएंगे वो उस समय के लिए रेलेवेंट हो सकता है, पर अगर उसकी बिगिनिंग है तो उसका कभी एंड भी होगा। यानी कि हम पहले पहले ये खुद को कहें कि हम कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसके अंदर एक मॉर्टेलिटी का एलिमेंट हमेशा रहेगा। यानी कि हम भी डिस्पोजेबल हैं। हमारे बनाए हुए कम्युनल फ्रेम्स, चाहे वो नेशन है, कल्चर है, रेस है, सिविलाइजेशन है, मॉनेटरी सिस्टम्स हैं, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, सोशल सिस्टम्स हैं, वो सब के सब डिस्पोजेबल हैं। और तीसरा, ये जो होमो सेपियंस है, ह्यूमन स्पीसीज है, ये भी डिस्पोजेबल है। अगर बाकी स्पीसीज की मौत हो सकती है तो हमारी भी मौत हो सकती है। क्या इस लिमिटेशन और इस कॉन्टेक्स्ट को हम अपनी हर बातचीत का फंडामेंटल बेसिस मान सकते हैं? मेरा तुमसे यह सवाल है। मान सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि वहीं पे शायद इंसान का ईगो आता है कि मेरी डेथ नहीं होगी, मतलब मैं तो अपनी इमॉर्टैलिटी मान के चल रहा हूँ कि आई एम इमॉर्टल। सी देखो, एक बात समझो, अगर हम इस सत्य को नहीं मानेंगे तो किसी भी बात का कोई रिलेवेंस नहीं है। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि हमारी देह की भी मृत्यु हो सकती है, हमारी बनाई हुई इंस्टीट्यूशंस की भी मृत्यु हो सकती है, और इस होमो सेपियंस जिसको किसी ने बनाया है, चाहे भगवान ने बनाया, चाहे नेचर ने बनाया, उसकी भी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि अगर हम मृत्यु को मानने को तैयार नहीं हैं तो जो कुछ भी बनाया है, बना रहे हैं, वो एक दिन टूटेगा और वह टूटने पर हमें निराशा होगी जो बेतुकी है। फिर तो अगर आप ये मृत्यु को मान ही नहीं रहे हैं तो आप सीधे सीधे मिथ ऑफ सिसिफस को जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर तो आप सीधे सीधे खुद को एक ट्रैप में डाल रहे हैं। आपकी बातचीत का कोई आधार
अगर है तो सबसे पहली शुरुआत ये है अपनी मॉर्टेलिटी का स्वीकार्य। क्योंकि जब अपनी मॉर्टेलिटी को आप एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप अपने प्रेजेंट के अंदर जो कर रहे हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, मेमोरी, विजडम, ये अच्छी बातें हैं, पर इनसे भी बड़ी एक चीज होती है जो है अनुभव, एक्सपीरियंस। अगर आप ईगो या और बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ जाते हैं तो आप इतनी सारी नॉइस क्रिएट कर देंगे कि आप एक्सपीरियंस जैसा आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने भी एक बहुत अच्छी लाइन सुनी, मतलब इसी देवदत्त पटनायक की एक किताब में थी कि अनुभव शास्त्र से बहुत बड़ा है। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर। यस, क्योंकि शास्त्र भी तो किसी कलम ने लिखा है। कलम के पीछे कौन था? कलम के पीछे एक अनुभव था। उस अनुभव ने भाषा का रूप लिया। भाषा ने कलम के आश्रय से एक कागज के ऊपर कुछ लिख दिया, पर उसके सबके पीछे तो एक अनुभव ही था जो इनविजिबल है। हमने उस अनुभव को आर्टिकुलेट कर दिया, उसको एक फॉर्म दे दी, पर मूल में अनुभव ही है। हम जो बात कर रहे हैं, ये बात उस अनुभव के बीच से ही आ रही है। अब उस अनुभव को हम किस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं, ऑडियो मॉडल में करते हैं या लिटरेरी टेक्स्ट के फॉर्मेट में करते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं। अगर गालिब करता है तो वो शायरी बन जाएगा, अगर व्यास करता है तो वो महाभारत बन जाएगा। पर मूल रूप में हम लोगों को सबसे पहले अपनी मॉर्टेलिटी के सत्य को स्वीकार करके ही इस अनुभव की खूबसूरती के अंदर छलांग मारने का, सुख हासिल करना चाहिए। जब पता है मर जाना है तो जब मरना है तो मर जाएंगे ना। बेसिकली यहीं पे मुझे लगता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द ह्यूमन डिलेमास हैव बीन सिमिलर। जो आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन डिलेमा थे, या 5,000 साल पहले थे, या आज के ज़माने में जो ह्यूमन डिलेमास हैं, उनकी नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। बट शायद हम इसलिए भी नहीं सीखते हैं, शायद मतलब क्योंकि हमें लगता है कि, क्योंकि शायद इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये भी है कि जो इन सब ह्यूमन डिलेमास का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उसकी मैक्रो नेचर तो हो सकता है सिमिलर हो, ठीक है, बट माइक्रो नेचर, जो माइक्रो कॉस्मोस है उस एक्सपीरियंस का, इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट। माय एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, योर्स वुड बी डिफरेंट। सी देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा अनुभव तुम्हारे अनुभव से हमेशा अलग होगा, नो डाउट अबाउट दैट। मेरा सवाल यहाँ ये है कि इसके बावजूद भी तुम्हारे और मेरे अनुभव के बीच में एक ब्रिज हमेशा ही बिल्ड किया जा सकता है। और क्योंकि वो ब्रिज जब बिल्ड किया जाता है तो तुम्हारे अनुभव को एक इको सुनती है मेरे अनुभव से, और वो ब्रिज तभी बिल्डअप होगा व्हेन आई एक्सेप्ट माय ओन डेथ फर्स्टली, इफ आई एक्सेप्ट माय ओन डेथ। यस सी, द पॉइंट हियर इज, अगर मेरी मृत्यु जरूर होनी है, अगर तुम्हारी मृत्यु जरूर होनी है, और हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी भी एक दिन मृत्यु हो जानी है, why to get bothered about that? The issue here is कि अभी जो बात करने का नशा है, अभी जो इधर से एक तार बजा और उधर से एक तार की आवाज सुनाई दी, ये जो वाइब्रेशन है जो ट्रैवल कर रही है, ये जो एनर्जी है ये जो ट्रैवल कर रही है,
इसी के अंदर ही तो जीवन है। इस जीवन की बात लिंक होती है। हाँ, यहीं पर उसकी एल्बर्ट कैमू की एक बात लिंक होती है। वो कहता है कि ये जो एब्सर्ड लॉजिक है, दिस इज नॉट एक्सट्रीमिज्म। वो इसको मिडिल पाथ का नाम देता है बेसिकली। इस लाइफ की एब्सर्डिटी को एक मिडिल पाथ का नाम देता है। और वो कहता है कि नो डाउट इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ होप, बट it should not lead to despair. It is a state of regret, but it should not lead to renunciation. It is a state of continuous dissatisfaction, but it should not lead to unnecessary unrest. yes, This is the most beautiful line in that entire book. ये मतलब exactly, if there's some take home message from that book, this is this particular line. या वही बात जो मैं कह रहा हूं कि हाँ, अगर मेरी मृत्यु होनी है, मेरे बनाए हुए कम्युनल फ्रेम की मृत्यु भी होनी है, और इवन मेरी स्पीसीज की मृत्यु भी हो सकती है, तो मैं अगर इन तीनों फ्रेम्स की मॉर्टेलिटी एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो एक लेवल पर कहा जा सकता है कि फिर कुछ भी करने का क्या तुक है। तो वो वही एब्सर्डिटी की ही बात है। बट जो आगे वो कह रहा है कि ये एक कंटिन्यूस लॉजिक है। ये कंटिन्यूस लॉजिक के बाद आपको एक जो विनम्रता, एक ह्यूमिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए, उसी से एक नई चीज, नई एंगेजमेंट बिल्ड हो सकती है। क्योंकि अगर रिनंसिएशन की बात आप कर रहे हैं, तो रिनंसिएशन तो ये समझ ही रिनंसिएशन है। इसके बाद जो कुछ भी शुरू हो रहा है वो तो एंगेजमेंट है। ये बातचीत भी एंगेजमेंट है, खाना पीना भी एंगेजमेंट है, कुछ नया बनाना भी एंगेजमेंट है। Basically, he's saying that there is no relevance of suicide if you understand this absurd logic to life. वो कहता है कि there is no need of physical suicide or there is no need of philosophical suicide if you accept this basic fundamental logic to life. हाँ, वो इसलिए कि जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि मौत तो होनी ही है, Exactly. जब मौत होनी ही है, तो आपके पास तो दो ही तरीके हैं। या तो मौत को उसी समय एक्सेप्ट कर लो, मर जाओ, सुसाइड कर लो, मर जाओ, ठीक है। जब आप उसी समय मरने की बात कर रहे हो, तो फिर तो हर चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब ये है कि जब जो कुछ भी बनेगा वो मॉर्टल है, तो इसका मतलब ये है कि उसके बावजूद भी जो इतना कुछ बना है, इतनी नेचर बनी है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते जाना, जीते जाना ही जीवन है। और नेचुरली जब जीते जाना ही जीवन है, तो हर बंदा अपनी अपनी समझ के मुताबिक जीने के अलग अलग बहाने बनाएगा। अब उसके बहाने बेतुके लग सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट वो जीने के जो बहाने बनाएगा, अब वहां पर हमारा जो काम होना चाहिए कि बहाने एक समय तक तो अच्छे लगते हैं, बहाने एक पॉइंट के बाद कैद ना बन जाए। अगर वो कैद बन रहे हैं, तो उस कैद से उसको आजाद कैसे किया जाए, तब ये एक ऐसा काम लगता है जो काम के लायक लगता है। अगर मुझे लगता है कि मैं आजाद हूं और मेरा दोस्त उस प्रिजन के अंदर है, तो मेरे लिए उस पल के अंदर उसको उस प्रिजन से बाहर निकालना एक काम है। वो सिर्फ ये काम है कि मुझे उसको बाहर निकालना है, मुझे इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये कंटिन्यूसली आपके गोल्स, बट आई एम सेइंग इज कि ये गोल्स
और ऑब्जेक्टिव्स आपके लगातार बदलते रहेंगे क्योंकि आप खुद बदल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता हाँ, एक चीज मुझे लगती है कि ये जो आपने ये 3 तरह की मृत्यु की बात की बेसिकली, मुझे लगता है कि अगर हम एल्बर्ट कैमू की ही बात को आगे लेके जाएं मतलब, तो मुझे लगता है कि हम हर मोमेंट पे किसी ना किसी तरह का इस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए एक सुसाइड करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो हमने सबसे बड़ा सुसाइड किया है वो सुसाइड है द कंसेप्ट ऑफ गॉड। जो द कंसेप्ट ऑफ गॉड है, मुझे लगता है इट इज वेरी फ्लॉड, एंड सिंस वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल दीज 3 डेथ्स, वी टेक द रिफ्यूज ऑफ दैट सुसाइड कॉल्ड गॉड। बिकॉज मुझे लगता है कि भगवान के मान लेना कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही है जो देखेगा, मतलब भगवान ही है जो करेगा, ये भी एक तरह की सुसाइड ही है। दिस इज अ फिलोसफिकल सुसाइड। वो कंसेप्ट बहुत फ्लॉड है। मतलब तुम यहाँ पर सुसाइड बेसिकली एक एम्ब्रेस ऑफ इग्नोरेंस को कह रहे हो। एग्जैक्टली। Okay, see, I do understand that. See, try to get into this thing. For example, अभी मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, एम्ब्रेस ऑफ इग्नोरेंस। तुमने उससे पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, सुसाइड। तुमने जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया और मैंने जब उसको उस कॉन्टेक्स्ट के साथ डायरेक्टली अलाइन किया, तुम एग्री कर गए, ठीक है। तुमने एक शब्द प्रपोज किया, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया, हम दोनों उस बात पर एग्री कर गए। सुसाइड शब्द की शुरुआत और उसकी ये एक्सप्लेनेशन का ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसकी उम्र क्या है? Not sure about that. इस कॉन्टेक्स्ट की उम्र तो कुछ पल ही है। अगर ये डायलॉग किसी और इंसान तक पहुंचेगा, वो हो सकता है उसको किसी और तरीके से देखे, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ लोग उसके अंदर से कोई यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट निकाल के उसको आर्टिकुलेट कर लेते हैं और उसमें से कुछ परमानेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट एक समय से हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर गॉड रेलेवेंट है, हो सकता है वो रेलेवेंट हो। द इश्यू हियर इज कि हमें जीने के लिए बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, और अगर हमारे बनाए हुए सारे फ्रेम मॉर्टल हैं, तो गॉड भी एक ऐसा फ्रेम है जो मॉर्टल होगा। अब मॉर्टल की शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं कि इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक कमी है, तो उस कमी को पकड़ते पकड़ते उस कॉन्सेप्ट को डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, और एक समय के बाद आपको उस कॉन्सेप्ट के अंदर अपने नए मीनिंग नजर आने शुरू हो जाते हैं, वो पुराना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। सी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास घूम फिर के जो चारा बचता है वो यही है कि हमारी मॉर्टेलिटी कहां से पैदा होती है। हम उन सोर्सेस को हमेशा अपने सामने जिंदा रखें, उनको आइडेंटिफाई करके रखें, और उसमें वो जो सारी चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा बांधती हैं, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंकर्स हैं हमारे, जैसे गॉड एक क्रिटिकल एंकर है, रिलीजन एक क्रिटिकल एंकर है, फैमिली एक एंकर है, मनी एक एंकर है, पॉलिटिकल सिस्टम या नेशन स्टेट एक एंकर है। ये वो एंकर है जिनकी उम्र 10-20 साल नहीं होती, इनकी उम्र सदियों में होती है। तो जो चीजें
इतनी दूर तक जाती हैं, देर तक जिंदा रहती हैं, उनको एंकर्स हम नॉर्मली अपने लाइफ टाइम के लिए एक परमानेंट, स्टेबल या कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसलिए वो चीजें हकीकत में मॉर्टल होती हैं, ओवर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम मॉर्टल होती हैं, बट इन योर लाइफ फ्रेम वो मॉर्टल नहीं आपको लगती। तो एक ऐसा आभास लगता है कि आपका धर्म ऐसा ही रहेगा सदियों तक। सदियों तक क्या, सनातन समय तक आपकी नेशन, आपकी मनी सनातन समय तक ऐसी ही रहेगी, जबकि वो सच नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें आपके लाइफ टाइम में मोर और लेस स्टेबल रहती हैं, आप उनको परमानेंट एंकर्स मानने की गलती कर लेते हो। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। और वहां पर आप कहीं ना कहीं उन एंकर्स को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे ये कभी हिलने वाले नहीं हैं। वही बेसिकली it's a kind of a philosophical suicide. Yes, I would say suicide. I would rather say that closing your eyes. It is closing your eyes. Very interesting. More very beautiful line by Devdutt Patnaik. यही जो आपने बोला, मतलब इसी को उसने एक समराइज कर दिया है, that in this jungle of insecurities even God is a prey. हाँ, गॉड का भी शिकार हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। और अब मैं वापस जो जहां से हमने शुरू किया था पिछले सेशन में, कि पेंडेमिक में हुआ क्या है। पेंडेमिक में सडनली हमारे बनाए हुए सारे एंकर्स टूट गए हैं। हमारा बनाया हुआ पहले तो मेरे शरीर का एंकर कि मैं जिंदा रहूंगा, पहले तो वो टूटा। फिर फैमिली और नेशन कि मेरी फैमिली मुझे बचा सकती है, मेरी मनी मुझे बचा सकती है, मेरा नेशन, मेरी गवर्नमेंट मुझे बचा सकती है, दूसरा वो भी टूट गया। और जिस तरह से ये वायरस फैल रहा है, सभी लोगों को तो जा रहा, और ये भी डर है कि इसकी म्यूटेशन हो जाएगी, तो हो सकता है कि ये इंसानियत को खत्म कर दे। तो पेंडेमिक के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ये तीनों फ्रेम्स, मेरी देह की मृत्यु, मेरी बनाई हुई इंस्टीट्यूशंस की मृत्यु, मेरे कम्युनल फ्रेम की मृत्यु, और मेरी होमो सेपियंस ह्यूमन स्पीसीज की मृत्यु, ये तीनों फ्रेम्स पेंडेमिक के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में सब लोगों को ये तीनों फ्रेम्स नजर आ रहे हैं। और अब सवाल ये बनता है कि अगर ये तीन फ्रेम्स हमारा फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट है, हम सब मॉर्टल हैं, तो मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो होमो सेपियंस को बचाओ। अगर इंसान बचेंगे तो रेस, नेशन, जेंडर, सिविलाइजेशन, क्लास, कास्ट ये बचेगी। तो सबसे पहले तो इंसानियत जिंदा रहे। तो इंसानियत कैसे जिंदा रहेगी? इंसानियत तब जिंदा रहेगी अगर एक इंसान एक ऐसी जिंदगी जिए जिससे ह्यूमन स्पीसीज पर खतरा कम हो, विच मीन्स इंसान और इंसानियत के बीच का जो फासला है वो ऐसा जिया जाए कि हम रेस, नेशन या जितने भी कम्युनल एंटिटीज बनाई हैं, उनका काम इंसानियत को बचाना हो, खुद को बचाना ना हो। Am I right? Thinking ecologically, basically. Yes, the issue here is कि अगर हम परिवार बना रहे हैं तो परिवार का काम खुद को बचाना नहीं होना चाहिए, परिवार का काम दुनिया को बचाना होना चाहिए। अगर हम नेशन को की बात कर रहे हैं तो नेशन का काम दुनिया को बचाना है, ना कि केवल खुद को बचाना। उसी तरह से मनी की अगर हम बात करते हैं तो मनी का काम
सिर्फ एक करेंसी को बचाना नहीं होना चाहिए, मनी का काम पूरी दुनिया को बचाना होना चाहिए। सडनली हमारे जो गोल्स थे, हमारे जो टारगेट्स थे, हमारे जो सरोकार थे, वो सडनली एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर हमें अपनी बनाई हुई हर चीज को रीइवेल्युएट करना पड़ेगा। मोहित, मैं जो बात करना चाहता हूं वो यही है कि जब हम रीइवेल्युएट करेंगे तो हमें फैमिली को भी रीइवेल्युएट करना है, रिलीजन को भी रीइवेल्युएट करना है, नेशन को भी रीइवेल्युएट करना है, और मनी को भी रीइवेल्युएट करना है। तो मेरा ये कहना है कि कहां से हम शुरू करें,